आप जितने भी रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स ले लीजिए, लाइक ताज, ओबरॉय, आई हैव सेंट माय स्टूडेंट्स देयर एंड दे आर वर्किंग. बहुतों ने अपने कैफेज खोल दिए. टियर 2 सिटीज से जो बच्चे आते हैं वो लोग ने अपने क्लासेस एंड कैफेज खोल दिए हैं. So Harshad, my director, is just going on saying, okay, and there's no awaaz, nothing. The TV is blank. I have to enact. He's like, okay, now there's a funny scene coming. Now you're tense. Now you're this. Now you're that. And I'm like just going on changing expressions with a Gunga TV. To make an almond barfi, you know, तो हमने वो hamper की classes, Diwali festive offer की classes करी हैं, which is after Diwali, and you won't believe it, we had 70 people here, and हर एक में Indian कपड़े पहने थे. Ingredients, equipment and technique, and as a teacher, that's the most important. क्योंकि मेरी growth नहीं बढ़ेगी अगर मैं कुछ छुपाऊंगी, तो गुरु कभी छुपा नहीं सकता. तो and a guru always feels happy जब शिष्य उससे आगे जाए, because the consul general was going to wear it and हमने वो theme बनाया था. So everything that's made from a master class to the demo to serving like a restaurant to pass arounds to the whole dessert buffet, our students get all the practice. So they're ready to go into the industry. Chef Rakhee Vaswani, right? And I'm so grateful. Beautiful weather outside, beautiful city this is, and I am today in your company, and I am truly grateful for your presence over our show. So please tell me if I'm with speaker Rakhee Vaswani, chef Rakhee Vaswani, content creator Rakhee Vaswani, or anything else which I may be missing upon. I truly welcome you at our Hospitable couch. सबसे पहले तो आई वांट टू से कि आप मानसून को हमारे यहाँ ले आए दिल्ली से. सो ब्यूटीफुल वेदर तो है ही, बट कुछ जगहों में ऑफ कोर्स ब्लॉकेज भी हो जाती है. क्या कहूँ अपने बारे में. आई एम अ टीचर, अ शेफ, अ मॉम, एन एंटरप्रेन्योर. कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग जो मुझे हाथों हाथ सीखना ही पड़ा, बिकॉज आई थिंक आजकल की जनरेशन को वो चाहिए. सो आफ्टर टीवी शोज, एंड आप जानते हैं कि टीवी इज नाउ नॉट अ मीडियम जो बहुत पॉपुलर है. आर काइंड ऑफ इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है इज, I think every industry is now surviving on social media and digital world है. So yes, I realize कि एक बार आपके shows TV पे आ जाते हैं तो you have to genuinely create content, क्योंकि एक audience है जो आपके लिए wait कर रही है. तो मैं किसी और के लिए नहीं, उनके लिए करती हूँ. एंड मज़ा आता है बिकॉज हम रोज़ कुछ ना कुछ नया बनाते हैं और वो ऑडियंस एकदम डिफरेंट होती है. तो हम कुछ ना कुछ हट के डिफरेंट चीज़ें बनाते रहते हैं और शूट करते रहते हैं. एंड आप ही जानते हैं हाउ इट इज़ व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट एंड यू doing the shows, that it takes a whole army to do all that work. तो I think वो भी बहुत important है लोगों को बताना कि it's a whole team effort and it's not easy, you know, what we do in that 60 seconds or 1 minute is literally a longer process, of course. 2-2.5 घंटे जाते हैं, you know, sometimes एक वीडियो में, and editing and then voice overs, music and, you know, words डालना, text डालना, caption करना, so a lot, yes. बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल मुझे पसंद है, ऑफ कोर्स आई एम अ मदर ऑफ 2 kids as well, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद इज़ द वन ऑफ टीचिंग. एंड इसीलिए फ्रॉम द स्टूडियो टू द एकेडमी हम सिखाते हैं फॉर पीपल गोइंग इन टू द इंडस्ट्री. दिस इज़ हॉस्पिटेबल, you know, couch, and there is a lot of gap in skill training, तो जिसे मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ. Wow, ma'am, that's a great start to the conversation we are going to have now. So everybody knows that you're a chef, you run an academy. That is true. I want to discover the life of young Rakhee Vaswani when she was in college, she was in school. At that time, आपके inclinations क्या थे? किसी चीज ने fascinate करा किसी और career में जाने के लिए, and of those things that took you to the path where the destiny where today you find yourself. So मेरे लिए फॉर द कुकिंग जर्नी, आई मीन आई डिडंट नो मैं इतनी दूर आऊंगी. आई डिडंट नो आई वुड हैव एन अकेडमी एंड आई वुड बी टीचिंग. अभी तो ऑफ कोर्स ड्रीम उससे भी बड़ा है, विल कम टू दैट. बट जब व्हेन आई वाज यंगर, सी आई एम अ फूडी. आई थिंक वो तो दिखता ही है और नजर भी आता है. एंड आई एंजॉय कुकिंग एंड आई लव टीचिंग एज वेल एंड आई लव फीडिंग पीपल. सो एट अ वेरी यंग एज, यू नो, हम हमेशा कहते हैं ना किसी और के घर में जब जाते हैं तो हमें ज्यादा पसंद आता है. एंड यू एंड अप हर्टिंग योर मदर ऑल्सो, एंड आई हैव डन दैट ऑन टीवी ऑल्सो. एंड शी टोल्ड मी तुमने नेशनल टीवी में, बिकॉज यू नो माय फर्स्ट इंटरव्यू था जब जी पे, एंड दे आस्क्ड मी डिड यू लर्न फ्रॉम योर मदर. आई सेड नहीं मुझे I love my mom's cooking, but what I meant to say at that time is कि
नहीं, मैंने तो अपने आंट्स नेबर्स सब दूसरे जगह लोगों से सीखा, बिकॉज मुझे अपने मॉम का खाना पसंद नहीं था. व्हाट आई मेंट इज कि यू ईट योर एवरीडे फूड एट होम. तो किसी और के घर में वो सिंपल सी दाल चावल भी होती है ना, वो तड़का ही अलग होता है, एंड यू जस्ट काइंड ऑफ लव दैट. सो आई मेंट दैट, एंड शी स्टिल रिमेंबर्स एंड सेज यू वेंट ऑन नेशनल टीवी एंड सेड दैट, एंड आई नाउ हैव टू गो ऑन सेइंग आई लव माय मॉम्स फूड ऑफ कोर्स. बट मुझे ऑलवेज चाह थी और सीखने की. सो इन द बिल्डिंग दैट वी वर स्टेइंग, हमारे जमाने में वो टाइम पे देयर वर नॉट सो मेनी बिग कॉम्प्लेक्सेस, देयर वर स्मॉलर बिल्डिंग्स एंड द नेबर्स वर मोर लाइक फैमिली. तो हम ना हर एक के घर में वी यूज्ड टू शेयर फूड. फूड इज एक्चुअली अ वे ऑफ spreading time, Connecting people. love, awareness and connecting with people. It's a bonding time also. तो अगर आज मेरे घर में कुछ बना है तो मम्मी will send it to the neighbor, और उन्होंने कुछ डिफरेंट स्टाइल का अपना बनाया, even though something we've eaten, but वो मजा अलग आता था. सो मैं ना एकदम वो फेवरेट चाइल्ड होती थी उस बिल्डिंग में, एंड आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम एवरीवन. तो मैं ना अपने सब आंटीज के साथ, आंटी आप मुझे अपने स्टाइल की गाड़ी सिखाओगे. सिंधीज एंड सिंधीज में बहुत बाइफिकेशंस होती हैं. सो किसी के घर में टमाटर की बन रही है, किसी के घर में तो बेसन की बन रही है. सो आई एंडेड अप लर्निंग अ लॉट फ्रॉम देम, एंड माई मॉम यूज्ड टू बी वर्किंग. So that made me really independent. But हमारी neighbors के साथ, मेरी एक neighbor थी जो she was a doctor, and she used to go for classes. So I actually started going for a cooking class at the age of 11 and 12. So मैं mom को बोलती थी आप तो नहीं जाओगी, मुझे भेज दो. तो बहुत शौक था तब से. And I felt that जब मैं बनाती थी तो everyone would love to eat. घर पे भी my dad and everyone said like no, you should be making all these things now. So it became like a very important thing. And फिर हमने रियलाइज किया कि ओके दिस इज समथिंग आई कैन डू. वो जमाने में एक्चुअली वी डिडंट हैव शोज ऑन टीवी. दूरदर्शन आता था, एंड मैगजीन्स यूज्ड टू बी लाइक वुमेन्स एरा एंड फेमिना, एंड इफ आई वुड सी अ रेसिपी लाइक समथिंग लाइक अ मुर्ग मुसल्लम, इफ आई हैव सीन इट, एंड आई एम barely 13, बट आई कुड एंड अप मेकिंग द सेम थिंग. तो मुझे तब से था कि आई वांट टू हैव फूड व्हिच इज लुकिंग लाइक अ रेस्टोरेंट. आई डिडंट नो कि मैं एक्चुअली ट्रेनिंग करूंगी प्रोफेशनली एट दैट टाइम. बट मुझे ना वो घर का वो स्टाइल होता था, जैसे आपने चिकन करी बना ली है, चिकन इधर है, अनियंस दिख रहे हैं, टमाटर दिख रहे हैं, और वो द ग्रेवी इधर इज रनिंग लाइक अ वाटर. सो मुझे था कि नहीं, रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं होता है, घर पे ऐसा क्यों होता है. तो तब से माई माइंड वॉज ऑलवेज वर्किंग कि इसको कुछ तो करना है. आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस. सो बचपन से आई वॉज वेरी ड्रामेटिक. आई वॉज अ ड्रामा क्वीन. इनफैक्ट मेरी फैमिली अभी भी सोचती है कि हाउ कम आई एम नॉट ऑन टीवी. आई सेड, आई कीप टीजिंग पीपल. आई सेड बालाजी का 2-3 बार फोन आया, मैंने मना कर दिया, बिकॉज आई यूज्ड टू फाइंड माई सेल्फ बचपन से running around, singing jingles, doing ads. Like, I mean, you could just ask me right now, Taj Mahal tea bag की जो हमारी ad होती थी, I can sing the whole jingle really well. And just the other day मैंने ये किया था अपने बच्चों के साथ, and they're like, who are you? I'm like, this is me. So मेरे बच्चों को मुझे बोलना पड़ता है, mom, can you just be a mom? And मैं थोड़ा ज़्यादा ड्रामा करती हूँ. So I बचपन से been very fond of everything. Food हो या creativity हो, dance, singing, everything, and I then that time पता नहीं था कि ये करने वाले. एंड आपको पता है उस जमाने में लोग बोलते थे कि बावर्ची बनने वाले हो, ये करने वाले हो. मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स आए हैं जिनके लिए उनके पेरेंट्स को डर लगता था, वो ऐसे बोलते भी थे. एंड बस ऐसे ये जर्नी शुरू हुई, एंड आई मेट माई स्पाउस, माई पार्टनर, हु इज बिन माई बिगेस्ट सपोर्टर. And I was very young when I met him actually. मैं 10th standard में थी, and अब तक ये journey चल रही है. And so it's been him. So you went the same school? Oh no, he's older than me. He was in college, and वो engineering college में थे और मैं school में थी. But हाँ, बहुत सारी चीजें मम्मी से छुपानी पड़ी. But जैसे क्या छुपाया? आप छुपाना नहीं चाहती तो please. तो अब वो जमाने में तो obviously you can't just go to your parents and say ना भाई हाँ I'm going to, I have a boyfriend, and at that age of course. But the thing is that मेरा जो food का journey is because of him. So he's a big foodie, he's a connoisseur. In fact मैं उनको, he's a big Anthony Bourdain fan also, and वो जब भी कुछ खाते हैं, उनको बहुत शौक था घूमने का, फिरने का, न्यू प्लेसेस ट्राई करने का. सो वी वुड बी गोइंग टू लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, एंड फिर वो जब तारीफ करते थे, दिस इज द ट्रिक एक्चुअली. अगर उन्होंने कुछ खाया है और उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छा है, दैट इज व्हाट यूज्ड टू गेट मी लाइक, अच्छा मैं इससे बेटर बना सकती हूँ. सो
I've only had that issue. और आज तक, anywhere we've traveled, अगर उन्होंने कुछ खाया. So, हमारे dating days में we used to go to places like, he used to love candies, and there was another place like Andorra. तो वहाँ पर small joint, like a small joint, and they used to do all these snacky things जो, आप शाम को खा रहे हो date पे and all that. तो उन्होंने उस समय, I was just 15 and he's had pan rolls, which were really tough to make. I mean, you need to have some formal training to do it. But when उन्होंने तारीफ की तो मैंने बोला like, a way to a man's heart is through his stomach. और मैंने सुना था because वो हमेशा अपनी बहन की तारीफ में, my sister this, my sister that, बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये करती है, वो करती है. And I'm like, इसको तो दिखाना पड़ेगा कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ और मुझे आता है. तो I took that as a challenge और मैंने वो बनाया. And बस that's the day I realized कि बस यही करना है, ऐसा ही कुछ करना है. Definitely this is my calling. But हमारे टाइम पे स्ट्रीम्स क्या थे? सिर्फ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस. सो our पेरेंट्स never took this seriously. Yeah, and इसमें आगे कुछ बन सकता है करियर. Coming from a Sindhi background at that time, हमें ना एक्चुअली ट्रेन किया जाता था कि भाई आप ऑफ कोर्स अपना स्कूलिंग फिनिश करोगे, आप कॉलेज करोगे, ग्रेजुएट होके अगर थोड़ी बहुत काम करना है तो आप कर सकते हो, बट द एंड रिजल्ट इज गेटिंग मैरिड एंड गेटिंग सेटल्ड. तो पता था कि यही गोल है एक्चुअली, ऑनेस्टली. And then everything lined up you that boosted your confidence to be cooking something. Yes, so वो टाइम में तो बिल्कुल नहीं. I mean, I went through my college and everything, and तभी तो ये फेस जो होम स्टाइल जितना मैं कर सकती थी, जितना आता था वो करती थी. Yes, everyone knew friends में कि okay, Rakhi is good. But अभी भी मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स जो अब मिलते हैं कभी कभार and they see that journey that I've taken, they are in shock mode. But हमें तो पता भी नहीं था you could do this, because मैंने वो पार्ट बाहर आने नहीं दिया था, किसी को दिखाया नहीं था ना. हाउ पीपल व्हेन यू टॉक विद योर फ्रेंड्स आप एस्पिरेशंस, मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं वो बनना चाहती हूँ. मेरे लिए तो बस वो टाइम पे था कि भाई ओके, दिस इज द मैन ऑफ माई लाइफ. उसे खाना पसंद है, मुझे खाना बनाना पसंद है, मुझे खुद को खाना पसंद है, एंड आई एम गोइंग टू गेट मैरिड एंड गेट सेटल्ड एंड हैव अ लवली लाइफ. So the story revolving around food. Around food, for sure. Okay. I did work also. I was working in a lot of colleges. I used to be learning training programs. होती थी, मैं काम करती थी. I was all of 21, 22, and I used to go and teach in colleges, in schools. So this was a educated learning programs. Your thinking skills and all that. It was a company, and because I had just passed out, I was very young, obviously. एंड मुझे तो ऑब्वियसली एवरीवन हु नोज मी नोज दैट मैं एक शेफ हूँ जो सिर्फ एक शेफ कोट में नहीं रहेगी. आई लव माई वैनिटी, माई ग्लैमर, दैट्स समथिंग आई कैन नॉट डिनाई एंड आई लव इट. सो मैं भी मिरर के सामने हमेशा, माई मिरर हैज टू टेल मी ओके सही मैं अपनी फेवरेट हूँ, वो हूँ. बट आई हैड टू लुक ओल्डर, क्योंकि अब मैं सिखा रही हूँ स्टूडेंट्स को जो 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में, तो मुझे साड़ी पहननी पड़ती थी. सो आई लर्न हाउ टू वेयर अ साड़ी एंड ऑब्वियसली शौक था वो जमाने में. तो हम नेल पेंट्स एवरी सेकंड डे चेंज करते थे, करते थे, सब कुछ करते थे. अच्छा. बट आई हैड टू लुक ओल्डर, सो इसीलिए मुझे साड़ी पहनना पड़ता था. तो उसमें आई मीन आई यूज्ड टू लुक इवन बेटर एक्चुअली. सो बहुत वो चैलेंजेस होते थे. इमेजिन इफ यू आर गोइंग एंड टीचिंग 5th to 10th स्टैंडर्ड किड्स एंड देयर आर बॉयज आल्सो. सो आई रिमेम्बर मेरे एक दो दिन जब मैं बीमार थी और मैं नहीं गई, तो वो the boys used to go and ask my boss, वो गोरी टीचर कहाँ है, वो आज क्यों नहीं आई. सो वो सब चैलेंजेस होते थे. ट्रैवल करना पड़ता था, मैंने कभी नहीं किया था. आई वॉज वेरी शेल्ड, स्कूल यहाँ, घर यहाँ, फ्रेंड्स यहाँ, कॉलेज यहाँ. तो मैंने कभी बॉम्बे इज ट्रैवलिंग इन द मुंबई ट्रेन्स इज नॉट एन ईजी टास्क, और मैंने कभी किया नहीं था. तो मुझे वो सब सीखना पड़ा. एंड लिटरली जब मैं ट्रैवल करती थी, एंड आई यूज्ड टू फील लाइक हे भगवान, दिस इज बैड, लाइक कोई ना कोई फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है. तो मैं ना वो एक ऐसे खड़ूस सा फेस बना के बैठ जाती थी कि अब कोई अप्रोच ना करेगा, क्योंकि लाइक लिटरली मैं ऐसे बैठ जाती थी कि लाइक बिकॉज बस में आप जा रहे हो, कोई ना कोई भाग रहा है, कोई ना कोई आप अगर जा रहे हो ट्रेन्स में एंड ऑल, साइन, बाइकला, दोस काइंड ऑफ एरियाज, तो यू आर गोइंग टू गेट दैट हैपेंस. और शौक था तैयार होने का, तो मैं बैंगल्स, बिंदी सब तैयार होके, यू कांट टेल अ 22-year-old नॉट टू गेट रेडी. इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? इज इट पॉसिबल? मुझे नहीं लगता. आई मीन यू कांट टेल मी नाउ ऑल्सो. सो या
Then marriage happened, of course. And that's the journey of the cooking actually began. So your parents and families were agreed to your Yeah, we are relationships? from the same caste and educated. Families were good, happy. So all that happened. Of course, 8.5 years of a relationship and 4-5 साल बहुत झूठ बोले. I think भगवान ने मुझे माफ किया उसके लिए. But you know how it is. पहले तो आप अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकते हो. फिर नहीं, just a friend करके ही pass on हो जाता है. But then yes, this was what was bound to be. And after marriage is when my work career started in the food industry. That is something that our audience would like to know. Those who follow you, of course, and those who aren't, they would follow now. Ki a woman, a female, always starts before the marriage, and जब तक marriage होती है वो कहते हैं ना कि वो बंद हो जाता है. Yes, In yes. your scenario, it took a jump. It took a hike after marriage. My family has been very supportive. My father is, of course, no more now, but a very well-read man, very practical. And in fact, वो हमेशा बोलते थे कि women should not sit idle. In fact, an empty mind is a devil's workshop. तो वो बोलते हैं औरतों को कभी भी घर ऐसे खाली नहीं बैठना चाहिए. In fact, he was of the thing that you should be working. Again, my mother-in-law is very supportive and my husband's very supportive. So that's when I started, हर एक की life में ups and downs आते हैं. And my husband's into the finance. And there was a phase that, stock market came crashing and everything went down. And at that point of time, मुझे लगा कि चलो, I need to start working as well. And मैंने अपने घर से classes शुरू की. और तब जब मैंने शुरू किया, there were home classes at that time. There was a very famous lady. In fact, the whole of Bombay would go to her. From Karishma to her mother would all go to her. Shaba, very, very, famous. And everyone who would call me up to ask about my class, और जब मैं address देती, तो सब बोलते कि, oh, this is the same building as Mrs. Sharda Pargal. Like, she was so famous. Imagine, you have a legacy. Like everyone in Bombay and everyone knows कि अगर cooking सीखना है तो you have to go here. और यहाँ पर मैं start कर रही हूँ and it was not easy, but तभी से सोच के रखा था कि कुछ अलग करना. So उस ज़माने में क्या होता था कि classes used to be जो home style होते थे कि a girl is getting married or something and they want to learn. खाना बनाना तो हाँ, तो पूरा एक मुगलाई का कोर्स कर रहे हैं, पूरा एक चाइनीज का कोर्स कर रहे हैं, पूरा कॉन्टिनेंटल कर रहे हैं. तो मैंने बोला इस नॉर्म को तोड़ना है. वी हैव टू मेक इट डिफरेंट. तो हम लोग ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट्स में बहुत जाते थे. लाइक माय हस्बैंड्स अ फूडी. तो मैंने ना जो क्लासेस स्टार्ट किए वो बहुत डिफरेंट स्टाइल किए. लाइक जो लोगों को बाहर जाके खाना पसंद है, तो अब व्हाई नॉट मेक दैट रेस्टोरेंट स्टाइल फूड एट होम. तो सिजलर्स हो रही है, अगर इंडियन भी हो रही है, तो देयर आर द बेसिक्स एंड ऑल. नो वन वांट्स टू लर्न दैट होल कोर्स. तो उस हिसाब से मैंने उससे थोड़ा एडवांस स्टाइल किया था. 1 day वर्कशॉप्स किए थे. तो इंसान आज आपको अगर सिजलर करना है तो आप एक आफ्टरनून आके अपना सिजलर फिनिश करके जा सकते हैं. आपको मुगलाई करना है तो बेसिक है आपके पास, बेकिंग है तो बेसिक है, चाइनीज है तो उसमें 2-3 डिफरेंट लेवल्स है. आपके ऊपर है, आप एक कर लीजिए. सो बट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. क्योंकि जब मैं छोटी थी and I remember मैं क्लासेस में जब जाती थी तो there were people who used to do before and after कि भाई ये मैं बता रही हूँ आपको and ये रेडी हो गया, और अगर आप ये मुझसे लेंगे तो I'm not saying she would do that, but इसके पहले जब मैंने क्लासेस में गई थी 1-2 बार किधर बेकिंग के लिए, तो वो एक बिफोर एंड आफ्टर होता था जो स्टूडेंट को लगता था कि कुछ तो ये छुपा रही है जो मुझे नहीं मालूम, और मैं जब घर जाके बनाऊंगी तो वो सेम नहीं बनेगा. अच्छा. तो वो मेरे मन में आया कि राखी, देयर इज अ गैप. ये टीचिंग को ना थोड़ा आगे बढ़ाना है. कुकिंग हमें पसंद है, ठीक है, आई लव कुकिंग, आई लव मेकिंग, आई लव ईटिंग एज वेल, बट दैट्स व्हेन इट हिट मी कि आई वांट टू बी अ टीचर. एंड जब मैं टीचर बनूंगी एंड चीजें करूंगी, इट्स नेवर गोइंग टू बी अ बिफोर एंड आफ्टर. सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच होगा. हर नॉलेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स, यस, नॉलेज ऑफ इंग्रेडिएंट, इक्विपमेंट एंड टेक्निक, ये 3 USPs हैं जो मैं आज भी पैलेट में अप्लाई करती हूँ कि ये मैं शेयर करूंगी तो ही जो घर जाके वो सेम टू सेम बना सकेगी, इवन इफ नॉट 100 or 180-90% फॉर श्योर, एंड देन द फैमिली इज हैप्पी. तो तब मेरे पास आई स्टार्टेड वर्क विद अ पार्टनर एंड शी वाज ऑलरेडी इन द इंडस्ट्री, शी वाज ऑलरेडी शेफ एंड टीचिंग, एंड
मेरे पास इतना फॉर्मल नॉलेज नहीं था, बट आई यही न्यू. मेरा सवाल था शेफ कि आपने एक टास्क लिया, मतलब अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ कि आपने एक टास्क लिया और उसके बाद आपने एक नॉर्म ब्रेक करा, दैट रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस, वो एक अलग बात है। लेकिन एक फॉर्मल एजुकेशन ना होना, अपने एक्सपीरियंस और अपने शौक को आगे बढ़ाना, जी तो वो कैसे हुआ कि आपके पास एक फॉर्मल एजुकेशन ना होते हुए जी टेक्निक और जो उसका प्रोसेस है, हाँ. जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी उस टाइम आ रही होगी, जी मेरे को नहीं पता है, जी. वो कैसे आपने सीखी और आपने आगे कैसे सिखाई? सो वेरी सिंपल. उस जमाने में तो होम स्टाइल क्लासेस ही चलती थी, तो दैट टाइम तो वी डिड वेरी वेल. एंड बहुत काम बढ़ गया. फ्रॉम वंस वीक टू एवरी 3 to 4 days क्लासेस होने लगे. बट आई स्टार्टेड निग्लेक्टिंग माई चिल्ड्रन. मेरे बच्चे बहुत छोटे थे. दे वो लर्न, you know, I had a newborn baby, and even throughout the pregnancy मैं काम कर रही थी, because we became so popular इतना कि 14 औरतें घर में बैठी हैं, सीख रहे हैं. And my son was just newborn, 5-6 months old, and मेरी बेटी 3 साल की थी. So I started neglecting them, and like I said, my mom was a working mom. That made me very strong and independent. But मैं चाहती थी कि I wanted to be a soccer mom and be there for my kids. So I actually just shut shop one day. Times were not that bad, and I just turned around to my husband and said, you know what, अब मुझे नहीं करना, because I want to be a hands-on mom and I want to be there for my children. And which year this was, man? This would be, today my daughter is 27. My son is 24. So you could say 24 years. So early 2000 or 90s, Yes. 1990s. Yes. I stopped and I took a 10-year sabbatical. Okay. एंड देन आई थिंक जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो बहुत शाने हो जाते हैं. तो उनको यू नो, आई मीन, आई यूज्ड टू, but I didn't stop cooking or feeding. And whenever I would travel, I used to take up a lot of international training and classes. So then one day my son was a state level swimmer also. Even my daughter was swimming, and then she was more of the creative kinds. And you know, they just told me one day, you know, I used to make a lot of fancy things. You know, when you're a state level swimmer, you have to be very particular about the diet. तो you know, carbs होना चाहिए, good proteins, ये वो सब कुछ. तो मैं बनाती रहती थी, बेक भी करती थी. तो they just said, Mama, you know, our friends' mom also keep saying कि you were so good. Why did you stop? You should restart. तो तभी ऐसे सोचा नहीं था. And suddenly जब उन्होंने बोला, I said, okay, चलो करते हैं शुरू. अब आप बड़े भी हो गए हो, you don't need me around so much. I've done all my duties, picking up, dropping, classes, singing, dancing, सब कुछ कर लिया है. So I said, okay. And that's when I told my husband. And that is when I started my formal training. Then I joined the, you know, Sapphire Bakery. Join किया, सीखा, and just when I told my husband, he straight away started looking for a place for me. I said, अब घर से नहीं करूँगी. So just down the house, उसने एक एजेंट को बुला, जगह दूंगी. And the next thing I knew, मैं दुबई जा रही हूँ, मैं वहाँ ट्रेनिंग कर रही हूँ शेफ से, और मैं अपनी जगह की इंटीरियर साइनिंग हो गई. And I was not ready, और मैं डर रही थी. मैं बहुत डर रही थी, बिकॉज आई एम अ सिंधी एंड आई थिंक आई हैव अ बनिया आल्सो फ्रॉम माय पिछला जन्म इनसाइड. करेंगे पैसा. जी, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ कि ये 2 साल का 3 साल, कैन यू बिलीव, 3 साल की लीज थी. और मैंने उनको रिक्वेस्ट करके बोला, मैं तो बहुत छोटी बच्ची हूँ ना, मैं, आप लिटरली हैव डन दैट. और मैंने उनको बोला, आप 2 साल का कीजिए ना प्लीज, बिकॉज 3 ईयर के लीज होते थे. और मैंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारा. उसके बाद मुझे एक्सटेंड करना पड़ा और ज्यादा भरने पड़े. तो आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, क्योंकि एज अ सिंधी आई एम जस्ट थिंकिंग, एंड माय हस्बैंड सेड, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुमको जितना सिखाना है सिखाओ. आपको महीने का 1 क्लास करना है, आप 1 क्लास कर सकते हो. आपको 2 करना है, आप 2 करो. ये दिस इज अ गिफ्ट, दिस प्लेस इज अ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम मी. एंड अच्छे से बहुत क्यूटली बना के दिया. 180 स्क्वायर फीट का गराज. मुंबई में स्पेसेस की बहुत इश्यूज होती है, एंड दैट टाइम गराजेस वर वेरी फेमस टू ओपन समथिंग. एंड फनी पार्ट ये है कि जब नाम सोचा, तो नाम रखा था पैलेट culinary स्टूडियो. अब कोई अगर गराज में कोई औरत कुछ खोलती है ना, तो सबको लगता है, एक तो स्टूडियो है तो सबको लगता है ये तो क्लोथ्स का ही कुछ होगा. अगर स्टूडियो है तो शायद पेंटिंग या आर्ट के रिलेटेड है. और जब उसे हमको यू नो वी हैड टू रजिस्टर इट, तो वहाँ वो बोल रहे, ये क्या है, ये पलाटे कुलिनरी स्टूडियो क्या है. पीपल वुड नॉट नो हाउ एंड व्हाट इट मेंट. पर्सन वुड नॉट नो पैलेट का मतलब क्या होता है, culinary का मतलब क्या होता है. एग्जैक्टली. और दैट वाज अ चैलेंज. बट जब मैं नाम रख रही थी, जब मैं अपने डिजाइनर से बात कर रही थी, वेबसाइट नाम सोचने के लिए, तो
they said you do what you want to do. क्योंकि palette for me means the color of food. Food has all the different colors, and it is a color palette. So actually palette means both. It's the palette that you paint with, but हमारे food में भी हम रंग ही भरते हैं, और वो जब रंग अच्छे होते हैं तभी तो हम खाते हैं. We actually eat with our eyes first. हम आंखों से पहले खाते हैं, फिर उसके बाद स्मेल करते हैं, और फिर आपकी टांग को टेस्ट आती है. तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू पैलेट. एंड मुझे वो कुकरी नहीं रखना था, क्योंकि पहले जब शुरू किया था तो इट वाज कुकरी क्लासेस, कुकिंग क्लासेस. तो ऐसे टिपिकल हाउसवाइफ वाला थिंग, ये डिफरेंट करना है, ऐसे मॉडर्न करना है, इसे सो मच ट्रेनिंग फ्रॉम आउटसाइड किया है, इसे क्यूट बनाना है, ऐसे होम स्टाइल नहीं बनाना है. सो दैट्स व्हाई. एंड स्टूडियो बिकॉज छोटी सी जगह थी, तो अभी से स्टूडियो ही बोलूंगी मैं. उस समय अकेडमी नहीं था, स्टूडियो था. सो द ग्रोथ हैज बीन लाइक दैट. एंड वो कैलकुलेशन की थी, तो डे वन से डिसाइड किया था कि which year did we have culinary academy? This academy we've started, it's been now 8 years. And but after the studio, we moved on to another place which I bought my own studio, and that's been running as a cloud kitchen now because COVID में 2 जगह नहीं चला सकती थी. And that's where everything happened, because after 3 years I realized कि I told my husband, अब तो I want my own place. अब landlord को कुछ बोलने की जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं है. You have to buy me my own place. मुझे ना हीरे चाहिए ना मोती चाहिए, आप मुझे मेरी खुद की जगह लेके दो. एंड फाइनेंशियली इज लाइक इट्स नॉट अ राइट डिसीजन. आप बड़ी जगह रेंट पे लो, बट यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी बिकॉज अप्रिसिएशन नहीं होता. सर आई डोंट नो, मुझे अपनी जगह चाहिए. And from that place, the TV happened, the book happened, all the shows happened. But I must say, in my garage also, I've had anyone and everyone come to me. I used to have Malaika, Manthara Bedi, Maria Guretti, you name it, people from all genre, whether they are expats, they are little kids. So at Palette, hum bolte hain, it's a one-stop shop. We teach from 4 to 80. We teach anything and everything with cooking and baking you want, with events, sab kuch karte hain. So anything that you need to know in a kitchen, that's your stop. बट एक चीज है कि आई एम अ परफेक्शनिस्ट, आई एम अ वर्को. तो मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा होता है. एंड देखिए, आई एम अ टीचर, तो ये हमेशा स्माइलिंग फेस तो नहीं रहता ना, तो गुस्सा भी आता है. गुस्सा कैसे आता है? वेरी किस बात पे सबसे ज्यादा आता है? परफेक्शन अगर क्लास में नहीं हो, क्योंकि आज at least 14-15 years हो गई है when I've restarted, and like I said, the journey has been from a garage to a studio, and then the academy, the TV show, book, everything, training in universities. So for me it's a second lease of life. It's very important. मुझे लगता है ये भगवान की गिफ्ट है मेरी. So it's very very important for me. So मेरी रेसिपी to the T होनी चाहिए. So कभी अगर हम क्लास में हैं और 10 लोग बैठे हैं सीख रहे हैं, और अगर कुछ मेजरमेंट्स अगर बेकिंग में या किसी में कुछ मेजरमेंट्स में कुछ गड़बड़ होती है, एंड वो रेसिपी अगर मैंने समझाया कि ये ऐसे से ऐसे होना है, और अगर वो नहीं हुआ, ऑफ कोर्स उसको आप सैल्वेज कर सकते हो, बट मैं वो नहीं कर सकती. बिकॉज मैंने अगर कॉन्फिडेंटली अपने स्टूडेंट को बोला, मैं वो सेम चीज रीस्टार्ट करूँ. जैसे आप मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, दे विल कम अराउंड एंड दे विल टेल यू कि यू नो व्हाट, अगर आई वुड सजेस्ट एट दिस स्टेज यू शुड रीस्टार्ट. तो मैं वो हमेशा से करती हूँ. एंड देन मेरा क्लास, आई विल सैल्वेज इट, आई विल रीस्टार्ट इट, एंड आई विल गो बैक होम, और मैं बहुत गुस्से में होंगी. एंड मेरे हस्बैंड बोलेंगे क्या हुआ? आई सेड कुछ नहीं, मेरा क्लास अच्छा नहीं गया. आई सेड अच्छा गया. तो स्टूडेंट्स खुश नहीं थे. आई सेड बहुत खुश थे, और 10 क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दे आर कमिंग बैक. ओके ओके, मुझे मत बताओ, मैं समझ गया. तो लाइक एज अ वर्को फॉर मी दैट 9.5 भी इज नॉट एक्सेप्टेबल. आई नीडेड टू दैट पॉइंट. तो वो हमेशा बोलेंगे, एंड ही नोज अगर मैं गुस्से में हूं तो इनसे हमेशा मुझे चिढ़ाते हैं. तो इवन व्हेन वी गो टू अ रेस्टोरेंट, मुझे परफेक्शन चाहिए. और सडनली अगर आप बैठे हो, कुछ सही नहीं आ रहा है, आप एपेटाइजर आ गया और मेन कोर्स आ गया एंड आप कर रहा है. सो मैं कभी कभार मैं गुस्से में हो जाऊंगी, एंड आई विल गो एंड टेल हिम, आई सेड ना आई कांट कंट्रोल, अब मुझे कुछ बोलना पड़ेगा. ही इज लाइक या छू मोती अटैक, उन पे अटैक कर, मुझे छोड़ दे, सारा फ्रस्ट्रेशन उधर ही निकाल. सो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे ऐसे बोलते हैं. ऐसा एक्सपीरियंस तो हुआ होगा आपके साथ, इफ यू आर रिकॉलिंग दैट. अरे ऐसे बहुत बार हुआ है, आई एम टेलिंग यू. वो ऐसे ही बोलते हैं मुझे, इट्स अ जोक बिटवीन अस. ही इज लाइक जितना भी गुस्सा फ्रस्ट्रेशन है बाहर निकाल के मेरे को बख्श दे.
कैसे करा फिर आपने, अगर कोई ऐसा सीन हो जाता तो? Then I will call the manager and I will go all over, you know, फिर सब खड़े हो जाएंगे लाइन में, सब ले मैम 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 करेंगे ऐसे. So I tend to do that कि मुझे perfection चाहिए. और मेरे काम में भी ऐसा है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि थोड़ी सी भी आवाज आएगी यहाँ पे ना, तो मेरा एक जोर से आवाज जाएगा and then सब the calm. The off-camera Roop of Rakhee Vaswani. See, you have to know, but you're playing different roles. Now you are a teacher and you are running a show. You are running a place. Everything needs to be to the T. So Exactly. all the time, it cannot be hunky dory and smiling all the time, right? So smile. So the other thing I can't do, okay, is I can't pout. I can't pout. I can't, because I have 10 different smiles. A photographer knows, and I have to tell you this on my show. My first show, which was with Z, that time it was Living Foods, is when they had launched, and I had banners all over Mumbai. Okay, अब ये ऐसा हुआ शो में, it was called Rewind with Rakhi. Beautiful show, because Rewind with Rakhi meant कि अगर आप सीजर सैलड खा रहे हैं या आपने आइसक्रीम खाई है या सूरती लोचो, तो ये सारे डिशेस का इजाद कहाँ से हुआ था, उसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या एनेक्डोट है, ऑल ऑफ दैट. सो हर एपिसोड में 3 रेसिपीज है. एंड एक में मैं ब्रिटिश एरा की तरह, आई एम लाइक, बिकॉज आई एम डूइंग द डाक पाकलो चिकन करी जो खान सामाज बनाते थे वो टाइम पे उनके लिए, गोरों के लिए, एंड अपने ऑफिसर्स के लिए. फिर मैं कर रही हूँ सूरती लोचो, बिकॉज गड़बड़ हो गया एंड सडनली सूरती लोचो बन गया, तो ये स्टोरी बना के, तो आई एम डूइंग ऑल दिस. सो 2 इंसिडेंट्स मैं आपको शो का बताऊंगी, विच इज रियली फनी. एंड I love smiling. I don't know how to pout, as I said. वो serious faces only because when I was traveling and for a reason. तो मेरा ऐसे क्या है ना, आज आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 3 कैमरास अगर हैं, तो there's always a close-up camera, there's a camera on you. ना मेरा रेसिपी हो गई, मेरे हाथ में डिश है, पर मैं फिर भी स्माइल कर रही हूँ. एंड मेरे डायरेक्टर ने मुझे बोला हुआ है कि द राखी नाउ द कैमरा इज नॉट ऑन यू, बट मेरा वो कंटिन्यूसली बाय चांस अगर कैमरा मेरे फेस पे आए तो इट हैज टू लुक परफेक्ट. तो दैट इज अ थिंग विच पीपल नो. मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हम फोटो क्लिक करेंगे ना, सो इन दैट वन ग्रुप पिक्चर में ना बाकी सबके एक्सप्रेशन चेंज होंगे. आपने देखा होगा कि राखी इज डूइंग दिस, I've changed my angle in that tuck 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 करके. Wow. So to make you smile even when you are angry, so let's put a selfie camera and you'll smile. 100%, 200% I'll smile. Oh, कितना मैंने अपनी ऑडियंस को एक ट्रिक बता दी. If you are whenever with her and she is angry, you put a camera and she'll smile. Of course, and I love it. It's not that I do it like जानबूझ के, but I just love it. I love the camera. मुझे बहुत पसंद है. I said मैं अपनी favorite हूँ. So अभी आप जो ये कर रहे हो, you like this? Of course. Yeah, because 3 cameras only focusing upon you. Of course, make sure the angles are just perfect and I'm looking perfect. ये इनका काम. Okay, यहाँ पर. If that doesn't go right, you'll be slipped. Yes, so make sure I'm looking perfect. So Miss Perfectionist, what got you indulged into cooking? Like एक होता है ना, एक किसी का forte होता है, like you're baking, you're doing something Indian, you're doing something Italian, you're doing something else. जी. वो कैसे हुआ? And what was that TV show that you liked the most? Because you have been on Food, you have been on Z and many more channels. Yes, TLC as well. Yes. तो मैं आपको इसी का ही एक बताती हूँ. तो there was another incident हुआ, you know, जब टीवी का जब दूरदर्शन चैनल आते थे and suddenly all channels started coming in. So there was this one scene when my directors made me sit like this, okay? Or he's telling me, now you are sitting in front of a TV, you're a housewife जो TV के सामने बैठी है, and suddenly different channels का इजाद हुआ है, and you have to change your expressions. So that was the thing. So I'm like, I'm on the TV. So I've done this when he's much more than this I've done, and my husband had come that day for the show, and my husband had come in with my kid, and they were like, ये क्या
he knew I was such a big drama queen, but I could. So Harshad, my director, is just going on saying, okay, and there's no avaz, nothing. The TV is blank. I have to enact. He's like, okay, now there's a funny scene coming. Now you're tense. Now you're this. Now you're that. And I'm like just going on changing expressions with a Gunga TV. I would have carried that on. Let's forget this podcast. Yeah, Wow. honestly. So now only Bhabiji roles are not happening. I can't do the vamp roles. Like I told you, I don't want the serious roles. I like to smile. So that's not happening. Yeah, so आप question पूछ रहे थे. Okay, which is your forte in cooking? Like, what do you like the most? Baking or any cuisine specialization that you like to cook? So honestly, like I said, कि for me ये second lease of life है, and I know that मुझे kitchen में सब कुछ पसंद है. So my strengths are everything in culinary. Like I said, my biggest strength is teaching. That's most important. And culinary भी करती हूँ मैं. I do a lot of baking, so people do call me the Desi Nigella. I don't know why, क्योंकि मैं रात को 2 बजे फ्रिज खोल के इतना बड़ा ड्रम स्टिक खोल के चॉम करके नहीं खाती. बट येस, आई गेस मैं खाते पीते घर की लगती हूँ, so I guess that's why. And yeah, I love her. She's amazing, and I mean, she's really someone you want to look forward to, and I take it as a compliment that they call me that. But fusion, I like to create. मेरे लिए ना everything while I'm cooking also, I want to create something different. तो I like to open the fridge and see कि क्या है, and not that कि ये recipe है बस इसी को follow करना है. So your that's own improvisation. always, Your always. own Every day we're learning something new, something different, and we want to keep getting better and better. अच्छा, आपने बताया you like teaching the most, right? Yeah. Over the years you have been Yes, teaching. yes. Any student of yours that has created something so जिनको आप Many. देखकर proud? So हम at the academy, our students, we've sent them to France to Michelin star restaurants also. They've gone on an internship और उनको they've been hired. आप जितने भी restaurants and hotels ले लीजिए, like Taj, Oberoi, I've sent my students there and they're working. बहुतों ने अपने cafes खोल दिए. Tier 2 cities से जो बच्चे आते हैं वो लोग ने अपने classes and cafes खोल दिए हैं. बाहर अमेरिका में कोई काम कर रहा है, लंदन में काम कर रहे हैं, तो टच वुड दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल एंड दे आर वर्किंग इन द बेस्ट ऑफ प्लेसेस. तो दैट्स द काइंड ऑफ बुटीक ट्रेनिंग हम करते हैं, वेयर आई टाई अप विद ऑल दीज शेफ्स आल्सो, एंड दे नो दैट आवर स्टूडेंट्स आर वेल ट्रेन्ड बिकॉज माय कोर्स इज a 6-month diploma, and we make sure that our students are with us for at least 8-9 months or to a year. तो मैं जितने भी events करती हूँ, everything is made from scratch. हमने यहाँ पे we've done events with USDA when the Consul General David Rance had come in, and he loved cooking. So we've done and I am going to make an almond barfi, तो हमने वो hamper की classes, Diwali festive offer की classes करी हैं, which is after Diwali, and you won't believe it, we had 70 people here, and हर एक ने Indian कपड़े पहने थे, because the Consul General was going to wear it, and हमने वो theme बनाया था. So everything that's made from a master class to the demo to serving like a restaurant to pass arounds to the whole dessert buffet, our students get all the practice. So they're ready to go into the industry. So ma'am, अभी तो हम ये बात कर रहे हैं with much more confidence, और क्योंकि past में कुछ ऐसा हुआ जिसने confidence build up करा. First time जब आपके पास कोई first student आया होगा, उसका nervousness भी होगा क्योंकि professionally आप कुछ सिखा रहे हो, है ना, जिसमें उसका मनी इन्वॉल्व है, आपका टाइम एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व है. तो कितने नर्वस मतलब थे, कुछ ऐसा जो आपने सोचा और जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ? बहुत नर्वस. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये एक्चुअली किसी ने मुझे पूछा नहीं है. सो जब मैंने फर्स्ट क्लास करी थी, ऑफ कोर्स फर्स्ट महीने में मेरे को 1 या 2 ही स्टूडेंट आए थे, एंड विद इन द मंथ बहुत सारे हो गए थे. तो जब फर्स्ट क्लास करी थी, जब लॉन्च किया था, तो 10 वर्कशॉप्स के साथ किया था, कि एक कबाब का है, एक एशियन है, एक लेबनीज है, एक थाई है, बेकिंग के 2-3 है, एंड कबाब, ऑल दीज काइंड ऑफ स्टार्टर्स एंड एवरीथिंग जो लोगों को पसंद है. तो 10 वर्कशॉप से शुरू किया था, एंड 1 साल के अंदर 100 से ज्यादा हो गए थे वर्कशॉप्स 1 डे के. सो फर्स्ट डे जब किया था, तो जैसे कैसे कोई थिएटर आर्टिस्ट होता है, आप परफॉर्म कर रहे हो, आप प्रैक्टिस करते हो, आप रिहर्स कर रहे हो, तो मैंने एक एक चीज रिहर्स किया था.
कि पहले ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, ये करूंगी, वो दिखाऊंगी, अब ये करेंगे, वो करेंगे, बिकॉज यू हैव टू नो इट बाय हार्ट. तो फर्स्ट एक दो में जब एक स्टूडेंट थी तो ठीक है, आई कुड मैनेज क्योंकि कोई और नहीं है. बट जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते गए, इनफैक्ट द फियर इंक्रीज मोर. क्योंकि आप सोचिए 10 लोग आपके सामने हैं और उसमें ना हर एक का फेस का एक्सप्रेशन अलग है, एक्सपेक्टेशंस भी अलग हैं. Exactly. तो क्या होता है कि when they come to you, even as a homemaker, they want to learn something, they've heard, they have given that X amount of money, और उनको अपने मनी का वर्थ चाहिए होता है कि मैं ये सेम कर सकूंगी. Is she a good teacher? सही सिखा रही है कि नहीं? Because तो कोई लोग ना वो एक्सप्रेशन से ही आप सिखा रहे हो और वहां आपके वो चेहरे दिख रहे हैं आपको. तो कोई एकदम ऐसे कर रहा है, कोई गुस्से में है, कोई क्या है, तो वो डर रहता था. बट बिफोर एवरी क्लास मैं वो प्रेपरेशन करती थी, सुबह से तैयारियां, आपके इंग्रेडिएंट्स, एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग हैज टू बी प्रैक्टिस्ड. तो वो फर्स्ट फ्यू क्लासेस में हुआ. इट हैपेंड फॉर क्वाइट अ फ्यू क्लासेस, से आई वुड से ऑलमोस्ट फॉर फर्स्ट 2-3 मंथ्स वो रहता है. फिर उसके बाद जब आप सेम चीज रिपीट करते जाते हो, देन तो आपको रात को 3 बजे भी उठाया, चलो एक कपकेक की क्लास कर लो, ओके फाइन, यू आर रेडी, इट्स नॉर्मल. फिर उसके बाद आया स्टेजेस व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग इवेंट्स. HT के इवेंट्स होते थे एंड 50 पीपल आर सिटिंग अप देयर, 100 लोगों का आप कर रहे हो. टीवी पे गए हो तो फिर वहां पे 500-400 लोग बैठे. तो आई एम अ पीपल्स पर्सन एंड यस, यू नीड टू नो दैट अगर कोई एक है जो नॉट हैप्पी है, तो यू हैव टू इंटरैक्ट विद योर ऑडियंस. चॉइस ऑफ वर्ड्स भी होना चाहिए, एक्सटेम्पोर होना चाहिए, टेम्पो ऊपर नीचे, कैसे एक्साइटिंग करना है, इवेंट्स अगर डेड जा रहा है तो उसको कैसे, everything. And you do this as a perfectionist, because I have attended many of your events. I can say that because वो इतना हिट उसमें रील में नहीं हुआ था जितना वो आपके कहने से हो गया. So beautiful, so elegant, looking like a wow. अब ये मैंने बोला तो डल हो गया. अभी थोड़ी देर में ये आप बोलेंगे. नहीं, बट द फन वाज कि सारे शेफ्स इतने बड़े बड़े दिग्गज शेफ्स थे एंड वो सब बोल रहे थे. एंड उसमें शेफ मंजीत गिल से जब आपने वो बुलवाया ना, दैट वाज वेरी फनी. It was too good. It was too good, and he was doing it really well now, looking like a wow. He was it was amazing, yeah. So शेफ, आपको इतने सारे कॉलेजेस से इनवाइट्स आते हैं, कई ब्रांड एंडोर्समेंट्स होते हैं जी, और काफी एकेडमीज, शोज होते हैं, all food centric. Yeah. What is the message that you would give out to the people and the viewers, those who are watching this, कि उनकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए towards food? People who want to go into the industry or जो सिखाना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, दोनों. सिखाने वालों को तो मैं यही कहूंगी, मेरे टीचर ने बोला था मुझे, द मोर यू शेयर द मोर यू लर्न. तो मैंने कभी भी कोई रेसिपी छुपाई नहीं है. इट्स ऑलवेज बिन, लाइक आई सेड, द नॉलेज ऑफ 3 USPs, नॉलेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इक्विपमेंट एंड टेक्निक. एंड एज अ टीचर दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेरी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी अगर मैं कुछ छुपाऊंगी. तो गुरु कभी छुपा नहीं सकता. तो एंड अ गुरु ऑलवेज फील्स हैप्पी जब शिष्य उससे आगे जाए. सो हमारी अप्रोच एट द एकेडमी यही रही है कि व्हेन आवर स्टूडेंट्स डू बेटर, हम ज्यादा खुश होते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर हियर टू डू. फॉर पीपल गोइंग इनटू द इंडस्ट्री, मुझे एक कोट याद आ रहा है, मार्को पिएवाइट का. वो आए थे वर्ल्ड ऑन अ प्लेट में यहाँ पर, और मैंने वो अटेंड किया था. एंड मैं देख सकते हैं आप कितना बात करती हूँ और कुछ नहीं, और उनके सामने मैं थोड़ा सा ऐसे नर्वस हो गई थी कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए. एंड आई रिमेम्बर दैट स्टिल. तो उन्होंने एक कोट किया था कि if you have a dream, then it is your moral duty to make that dream happen. So you have to work towards that. So मेहनत तो करनी ही पड़ती है. पैशन होना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है. You have to work hard. You have to be motivated, and you have to work along with a team also, because it's not a single person's job. It's a tough job, the industry, but see, fortunately अभी बहुत सारे एंगल्स खुल गए हैं, कितने एवेन्यूज खुल गए हैं जो वो जमाने में नहीं होते थे. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स. जैसे कहते हैं ना, दिस इज वन, बट
this together is what is more ताकतवर, you know. ये एक one, ये मुट्ठी के साथ जो काम कर सकते हैं would be a better result. So yes, you need to make sure that you have a good, strong backing, a team, family support, very important. How is Rakhee Vaswani behind the cameras, your daily life, apart from when you're not at your academy, other interest in daily life? What keeps you involved and busy? Rakhee Vaswani in front of the camera, what people see, they see a very rosy life. It is not that rosy. Kabhi bhi. It's a lot of hard work. In fact, COVID years तो were even tougher. आप believe नहीं करेंगे, मैं यहाँ पर आप आया हूँ, ये लिंकिंग रोड पे है. कोविड में ये गब्बर का शहर हो गया था. तो मैं सुबह 9 बजे आती थी. Then 3 महीने के बाद जब खुलने लगा and online and सब कुछ शुरू हो गया, and I had a very small team जिसके साथ हम काम कर रहे थे. We didn't want too many people. मैंने वो पूरा जो बिफोर द सेकेंड फेज ऑल्सो कंटिन्यूसली वो 2-2.5 साल जो मैंने काम किया था कोविड में, दैट होल ईयर एंड अ हाफ, फ्रॉम 9 in the morning till 9 in the night. And the first few months, I think we started in June. अगस्त तक भी यहाँ शाम को कोई नहीं था. एंड देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बाद जैसे दे स्टार्टेड ओपनिंग द शॉप्स ऑल्टरनेट. सो इमेजिन लिंकिंग रोड जब आप शाम को देखेंगे जो इतना लिट अप होता है, इट वाज लाइक अ गब्बर का शहर. हम यहाँ कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और यहाँ कोई नहीं. Luckily my house is nearby, so it was convenient and the people staying nearby were there. But it wasn't easy. There were days मैंने online classes 3 in a row किया है. एक इस culinary section में किया है, फिर वहाँ पर जो bakery में हो रहा है, और फिर एक और. So I've run ऐसे 3 जगहों में, and I've done also on one particular day because पूरे टीम को support करना था. I'm the captain of the ship. I couldn't let go. I had to ensure कि सबका घर चले, सबके काम चले, and सबका mind भी occupied रहे and motivated रहे. So that was not a tough, it wasn't an easy phase, and I've gone through that. I've gone through a lot of hardships, and yeah, social media I love shooting. I'm a very different person in front of a camera. Like you just have to say on and I'm on, off and I'm off. But teaching, yes, I love. On a daily basis, I go to a lot of restaurants because बहुत invitations आती हैं, रोज नए नए खुलते हैं. My husband, as you said, is a foodie. I love otherwise chilling, binge watching on Saturday, Sundays. I don't like to go anywhere because the whole week hectic हो जाता है, तो I like to chill. I love travel. Makeup, beauty and skincare is my go-to. I do a lot of content on that also, और मैं शेयर करती हूँ. मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या आप एक इन्फ्लुएंसर हो, इट्स योर मॉरल ड्यूटी टू पुट इट आउट देयर इन द राइट मैनर. तो मैंने आज तक ऐसी कोई चीज़ डाली नहीं है जो मैंने यूज़ नहीं की हो. सो यू नो थिंग्स दैट येस आई एम ब्लेस्ड विद गुड स्किन एंड एवरीथिंग, बट उसे मेंटेन करने के लिए अपने आप, या आई पुट इट आउट देयर. मैं वहाँ डालती हूँ, and I only go to people who I believe in and loyal. I mean, I won't be going every day कोई नया place. No, I'm a loyalist. So your passion for food and teaching made you a celebrity, right? So just a small question here is, जब आप एक celebrity बन जाते हो, जी, लोग आपको follow करते हैं, आपसे उम्मीद रखते हैं. तो as a celebrity या as somebody who is being followed in a public figure, आपकी responsibility क्या बनती है अपने viewers के लिए, जो आपका कंटेंट कंज्यूम करके उसको अप्लाई करते हैं डेली लाइफ में? सो एक बात तो बहुत मजेदार है कि इनफैक्ट एक दिन मैं ट्रैवल कर रही थी एंड मैं वापस आ गई थी, एंड कोई एक इनविटेशन थी जिसने मुझे फ्रेंड ने या किसी ने नहीं भेजा, एंड देन सडनली उससे 2 दिन के बाद मुझे मैसेज किया, यू आर बैक. आई सेड या आई एम बैक. अरे बट यू डिडंट पुट ना बैक टू द बे. So because I'm putting it all out there, it's just that because I love the audience and I love sharing where I'm going. कोई नई जगह है. January में वियतनाम गई थी. In May I went to Antalya and Istanbul. Antalya में काम के लिए गई थी. तो I love to put it out there because you never know किसको हम कब इंस्पायर कर रहे हैं, किसको हम कब मोटिवेट कर रहे हैं. तो जितना मुझसे बन पड़ता है मैं वो करती हूँ. बट ऑफ कोर्स उतना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा मैंने बोला कि आपने मेरा अगर अकाउंट देखा है, सो अब बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और एक इंसान सब पे तो नहीं रह सकता, सब कुछ तो नहीं कर सकता. यस, यूट्यूब चैनल मेरा थोड़ा बैकलॉग में आ गया था बिकॉज आई फाउंड इंस्टाग्राम ईजियर
to And connect people. एंड गूंगे वीडियोस तो आसान हो जाते हैं, थोड़े ज्यादा फास्ट हो जाते हैं, बिकॉज आप वॉइस ओवर करके फिनिश कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है कि जब आप शूट कर रहे हो, जैसे हम आज शूट कर रहे हैं, सब कुछ बंद, आवाज नहीं कर सकते हो, तो थैंक गॉड फॉर ग्रेट माइक्स दैट टेक्नोलॉजी मेक्स योर लाइफ इजी। तो अब मेरे आई एम लाइक, एंड यू नो आई एम एन एक्ट्रेस, सो आई कैन जस्ट स्ट्रेट अवे, अगर अभी मुझे कुछ करना है, हमको ये कुकीज बेक करनी है, तो ठीक है, मैंने ये ट्रे ले लिया, एंड in one day वो वाला करो ना प्लीज, ऐसा I- लेके करते प्लीज। I can do like 5 recipes, you know, in that 2.5 hours. So this is my tray, and then I'm like, so it's very easy. ये शुरू कर दिया आपके एंड से, फिर उसके बाद आप जो टेक्निक्स दिखा रहे हैं, आप वो दिखा रहे हो, और एवरीवन अराउंड यू कैन ब्रीथ एंड टॉक, बिकॉज फिर उन लोग का सब कुछ टाइट करके सब बंद करके बैठ जाना होता है, थोड़ा भी आवाज है, ओ नो वी हैव टू टेक अ रीटेक, बिकॉज इतने एडवांस टेक्नोलॉजी की तो नहीं है हमारे पास, तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो। तो अब ये वीडियोज ईजी हो गए हैं, स्टेप कर लिया, अगर मुझे कुकीज बनानी है तो फिर पहले बटर डाला, शुगर डाला, क्रीमिंग किया, ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले, सीव किया, और फिर सडनली ये कैमरा एंगल, ओ, फिर उसके बाद उसको शेप किया, वेट वेट वेट, रेसिपी कमिंग, ओवन में गया, बाहर आया, बस ये पूरा 60 सेकेंड का वीडियो जो हमको ऑफ कोर्स फिर भी 1 घंटा लगता है, बिकॉज हम चीट नहीं करते, वी डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, एंड समटाइम्स हम लोग रेडी करके रखेंगे, बट वो यहाँ बनता है। सो द रेसिपी वीडियो दैट आई शो ऑन दैट विल बी मेड, लाइक आप बना सकोगे, मैं कभी कोई रेसिपी झूठा नहीं डाल सकती, आई टोल्ड यू आई एम अ टीचर। So that's most important. मेरे फर्स्ट शो पे भी रिवाइंड विद राखी, oven was not working. It was a fake oven. वो लोग ने सेट लगाया हुआ था, तो मैंने बैक किचन में अपने हेल्पर के साथ oven रखी थी, तो इमेजिन ये मेरा बैटर है, अच्छा आप देख रहे हैं, अब मैं इसे बेक कर रही हूँ, वो सिर्फ एक डब्बा था ब्लू कलर का, वो oven नहीं था, तो उसको खोल रही हूँ, मैं डाल रही हूँ, काट, देन वो उसको वापस oven में मैं भेजती थी, क्योंकि मैं तो वो टीचर थी, तो वो सेट में तो परेशान मेरा डायरेक्टर, ये तो चीट नहीं करेगी, आई सेड नहीं, इट हैज टू बी बेक्ड एंड कम आउट परफेक्ट, फिर ही मैं आपको आफ्टर दिखाऊंगी, बिकॉज मैं ऑडियंस को झूठा रेसिपी नहीं शेयर कर सकती। सो येस वी गो थ्रू दैट मैनर, बट देन इट्स ईजियर कि एडिट भी कर लिया, लॉट ऑफ डायरेक्शन गोज इनटू एवरीथिंग, आई मीन इट्स नॉट दैट इजी, यू हैव टू प्लान, इसको ऐसे करना है, वैसे करना है, एंड yeah, so in a month I do more than 20 to 25 recipe videos which goes on my page, so And that's my moral duty, that's my moral duty, whichever festival comes, whatever comes, जैसे अभी वर्ल्ड चॉकलेट डे था, तो हमें I was also traveling and back and forth, तो टाइम नहीं मिला, तो Saturday we had to do it and Sunday videos gone. वड़ा पाव भी डाला था अभी। Vada Pav is going on the YouTube, so my YouTube channel was being handled by One Digital, and things were not going that well. So I've now taken it over myself, and I said, okay, if the audience wants a long format, तो मैं खुद करूँगी, because I have a kitchen and everything. So why not do it like that? So yes, Vada Pav is there on my page from years, and we keep reinventing. हम bake Vada Pav करते, ये करते, but I keep doing it. Most of the times I don't put the same video जो पहले का डला हुआ है. I don't mind. अब ये मौसम ऐसा है, Vada Pav बना लिया, टीम ने खा ली, मजा किया, तो ठीक है ना, we enjoy it. मैंने एक सवाल सोचकर नहीं आया था, बट जो पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ ना, उसमें आई एम कंपेल्ड टू आस्क दिस, आप थिएटर क्लासेस क्यों नहीं ले लेते? ले लूं, मैं तो नेचुरल हूँ। इसीलिए उनको टीच करो ना, कि ऐसे करना वैसे टीच करूँ, हाँ, बिकॉज़ यू आर अ टीचर, आप कुछ भी सिखा सकते हो, और ये तो आपको आता है। ठीक है, तो कोई थोड़ा सा ऑफर रॉयल्टी दे देना आइडिया देने के लिए। ठीक है, कोई ऑफर आता तो आप बता देना, मैं कमीशन भी दे दूंगी। ओके, थैंक यू। सो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू मैम। थैंक यू, माय प्लेजर। आई थिंक सबको तो ये मैसेज, ये कॉन्वर्सेशन के थ्रू जाएगा। आई थिंक ऑल द फीमेल्स एंड वुमेन्स दोज आर एक्सपायरिंग नाउ from tier 2, tier 3 cities, they will also, अगर वो formally education नहीं लेना चाहते because of the preconceived notion कि hotel management studies बड़ी advanced होती है। So hotel management बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि hotel management covers everything. उसमें skill development of culinary and bakery नहीं होता, which that's why I went and I did. I've trained at Tante Marie, Cordon Bleu, Ashburton, Richmond Master Baker. So मैंने बहुत सारे international programs किए schools में, 2-2, 3-3 महीना जाके रही हूँ अपना घर बार छोड़ के, and then I realized कि not everyone can do it, and why not, and it's expensive and you can't leave your family, और कोई family नहीं support करती. So that's what we offer here at literally 1/10 the price, and you can live your life
and learn and make a career. Because जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप क्या देखते हो? पहले तो उसके सर्टिफिकेट्स देखते हो. डिग्रीज देखते तो हैं. why do you want to be called a home baker? मैं ये कहना चाहती हूँ सारे home makers को and home bakers को कि why do you want to be called a home baker? It's time to get that formal degree. अपने आप को upgrade करो. The message is so loud and clear from your end. I don't think that I should say anything now because the sole purpose for this podcast is to enlighten and democratize the hope and motivation in the individuals, especially from those cities and states जहाँ पे hindrance होती है किसी विजन को लेकर के, थॉट प्रोसेस को लेके कि वो अपनी जनरेशन आगे इस फील्ड में नहीं आने देते कलेक्टिवली, जिसको हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं. उनको लगता है बहुत फेम, बड़ी ग्लैमर की इंडस्ट्री है, जो हो सकता है अलोंग द साइड वो बाद में अचीव भी करे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में मेहनत लगती है, रिस्पेक्टेबल इंडस्ट्री है, एंड दैट टू बीइंग अ फीमेल दैट यू हैव अचीव्ड सो मच, वी कांग्रेचुलेट यू. I want to tell you a very funny thing. So, पहले जब a couple of years back, I used to get DMs and people used to call जब live करते थे ना, तो ये question पूछा जाता, मैम आपके जैसे बनने के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा? I didn't know what to say because it's a lot of hard work and no one knows that. I mean, of course, everyone knows that the journey has been like now 14, 15 years from a small garage, and then every stage I've taken slowly, and it's a lot of work that you require. But मैं जैसे आपको वही मैसेज कह रही हूँ कि the every homemaker or a home baker, you need to learn to take action and get yourself formally trained, because उससे जो आपकी confidence बढ़ती है वो बहुत ही different हो जाती है. And हर time आप अपने आप को home baker क्यों बुलवाना चाहते हो? So make sure you get that formal training. They can come to me or they can go anywhere else. But it's most important because it just changes your whole personality and the way you are as a chef. It's like a 360-degree turn. Bilkul. On that note, I thank you very much for gracing the show. Pleasure. And truly blessed to have your presence. And there you go. I mean, it's great. I mean, Rishabh, you guys are a young team and y'all are doing a fabulous job. And I wish more and more luck to this venture. And I hope you have like a line of chefs waiting to interview. And you don't have the dates and times. Yes, so thankful. So thankful. Hope that day comes. Pleasure. Sure. Thank you.